नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम B.Ed and BA B.Ed, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। Students, today we will discuss on session and topic features of directive principles of state policy in the Indian Constitution. Both language, first in English, then after Hindi. Let's see in English. The directive principles of state policy contained in part 4th article in 36 to 51 of the Indian Constitution constitute the most interesting part of the Constitution. Let's see features one by one in points. First is the state should strive to promote the welfare of the people. Second, maintain social order through social, economic, and political justice. Third, the state should strive towards removing economic inequality. Fourth, removal of inequality in status and opportunities. Fifth is to secure adequate means of livelihood for the citizens. Sixth is equal for work opportunity for both men and women. Seventh, prevent concentration of wealth in specific pockets through uniform distribution of the material resources amongst all the strata of society. Next is prevention of the child abuse and exploitation of workers. The next is protection of children against moral and material abandonment. And next is free legal advice for equal opportunities of avail of justice by the economically weaker section. And next is organization of village panchayats which will work as an autonomous body working towards giving justice. And next is assistance to the needy, includes the unemployed, sick, disabled and old people. And next characteristics is ensure proper working conditions and a living wage. And next is promotion of the cottage industries in rural areas. And next characteristics is the state should endeavor towards a uniform civil code for all the citizens of India. And next is free the compulsory education for children below the age of 14 years. And next characteristic is economic and educational upliftment of the SC and ST and other weaker sections of the society. And next is provision of alcoholic drink, recreational drugs and cow slogan. And next is preservation of the environment by safeguarding the forests and the wildlife. And next is protection of monument places and objects of
historical and artistic interest on national importance against districts, distribution and damage. And next is promotion and maintenance of international peace and security, just and honorable relations between nations, respect for international law and treaty obligations, as well as settlement of international disputes by arbitration. This session prepared by Jyoti Vidyapeeth Women's University, डिजिटल वर्जन 2.0. लेट्स सी इन हिंदी. भारतीय संविधान में राज्य नीति के निश्चित तत्व, इसकी क्या विशेषताएं हैं, लक्षण, वो हम आज देखेंगे. देखिए, ये तो हम जानते ही हैं कि जो भारतीय संविधान का भाग 4 है उसमें अनुच्छेद 36 से 51 में ये नीति निश्चित तत्वों के बारे में बताया गया है, जो कि एक बहुत ही विशेष भाग है, हिस्सा है भारतीय संविधान का. इनकी जो विशेषता है उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहला जो लक्षण है, विशेषता है, वो राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना चाहिए. दूसरा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना. तीसरा, राज्य को आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए प्रयास करना पड़ता है. चौथा, स्थिति और अवसरों में असमानता को दूर किया जाता है. पांचवा, नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुरक्षित किया जाता है. छठा, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के अवसर प्रदान किए जाते हैं. इसके अलावा समाज के सभी स्तरों के बीच भौतिक संसाधनों के समान वितरण के माध्यम से विशेष की जाती है. इसके अलावा बाल दुर्व्यवहार और श्रमिकों के शोषण की रोकथाम की जाती है. और इसके अलावा अगला है, नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ बच्चों का संरक्षण किया जाता है. इसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग द्वारा न्याय का लाभ पाने के समान अवसरों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह दी जाती है. अगला लक्षण है, ग्राम पंचायतों का संगठन जो न्याय देने की दिशा में काम कर रहे एक स्वायत्त निकाय के रूप में काम करना. और अगली विशेषता है, बेरोजगार, बीमार, विकलांग और वृद्ध लोगों सहित ज़रूरतमंद जितने भी उनकी सहायता करना. और अगली विशेषता है, उचित काम करने की स्थिति और एक जीवित मजदूरी सुनिश्चित करना. अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना. और अगली विशेषता, राज्य को भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की दिशा में प्रयास करना. और अगला है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना. अगला है, SC, ST और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों का आर्थिक और शैक्षिक उत्थान किया जाता है. और अगला जो लक्षण या विशेषता है, वो मादक पेय, मनोरंजक दवा और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाता है. और अगला है, वनों और वन्य जीव की रक्षा करके पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है. और अगला जो लक्षण या विशेषता है, स्मारकों, स्थानों और ऐतिहासिक तथा कलात्मक रुचि और विनाश तथा क्षति के खिलाफ राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं का संरक्षण प्रदान किया जाता है. और अगला जो है और अंतिम, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और रखरखाव, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्वों के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनको दूर करना. तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं नीति निश्चित तत्वों में शामिल हैं, लक्षण में शामिल है, विशेषताओं में शामिल है. ये जो सेशन है वो ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के 2.0 डिजिटल वर्जन के द्वारा तैयार किया गया है. तो कहीं ना कहीं आप जो सिलेबस में पढ़ते हैं, जो आपका कैरिकुलम का जो पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, स्टेट पॉलिसी, तो उसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें जो विशेषताएं हैं, लक्षण हैं,
इन सभी को ये कवर करता है आज का सेशन। क्योंकि देखिए जो बहुत बार ये सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है। इनमें से मैंने जो आपको इतने पॉइंट्स बताए हैं आप उनको देखिएगा, पढ़िएगा, और एक जो कहाँ किस जगह, ठीक है, किस भाग में और किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है या लक्षणों की बात कही गई है, तो वो आप इसमें इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में उसका आंसर दे दें। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले सेशन में देखेंगे।